formula and some basic concept that is required to solve numericals related to simple electric circuit diagram. और मेरा सजेशन है कि आप ये सब पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखें एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. तो हम लोग मेनली बात करेंगे रजिस्टर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का. So there are two types of combination we are going to discuss. Combination of registers that we are going to discuss. First is series combination and second one parallel combination. And we will also discuss some circuits where both series and parallel combination will be there. So topic is here, combination of registers. Combination of registers. And we know that there are two main types of combination of registers. One is called series combination. One is called what? Series combination. तो registers को कौन सा condition में बोला जाता है that they are in series combination, that we are going to discuss. If registers are connected end to end, ये symbol for register. अगर registers को हम लोग connect करते हैं end to end, one after another, in the same path of current, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? Source of current को connect कर देते हैं. A cell is connected. Okay, and these three registers are connected end to end. Let the resistance of first one be R1, second one be R2, and third one be R3. ये positive terminal, negative terminal, by convention, direction of electric current to be considered from positive terminal towards negative terminal. So these three registers are connected in series combination. इनको series combination में क्यों बोला जाता है? They are connected end to end in the same path of current. अगर इस पॉइंट को A मान लेते हो, इस पॉइंट को B मान लेते हो, A और B के बीच में करंट का पाथ एक ही है. यहाँ आप कितना भी रजिस्टर इस पाथ में कनेक्ट करो, उन सब को बोला जाएगा दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अप्लाइड बी V and let I be the amount of current flowing through the circuit. वोल्टेज का पता हम लोग को चलता है वोल्टमीटर से, करंट का पता चलता है हम लोग को एमीटर से. So under what condition registers are said to be in series combination? आपको यहाँ एक और एग्जांपल में देता हूँ. ये पॉइंट A है, यहाँ एक रजिस्टर इधर कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा इधर है और थर्ड वन यहाँ कनेक्ट किया मैंने, और बिटवीन A एंड B. तो बहुत स्टूडेंट को अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि R1, R2, R3 में कौन सा दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हो सकता है बहुत स्टूडेंट ये आंसर दे कि R1 और R3 पैरेलल है, दिखने में पैरेलल लग रहा है. बट अगर मैं कॉन्सेप्ट का बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोला जाता है? when the two registers are connected between two points in the same path of current. So A और B दो पॉइंट है, और आप देखो यहाँ तीनों रजिस्टर को करंट का सेम पाथ में कनेक्ट किया गया है. दैट मीन्स R1, R2 and R3 they are in which combination? Series combination. Okay, so main concept आपका क्लियर होना चाहिए कि रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोला जाता है. रजिस्टर्स को कब बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? when they are connected end to end. They are connected end to end between two points in the same path of electric current. और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना होगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए. फर्स्ट वन, the amount of electric current flowing through each register in series combination is the same.
सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रजिस्टर होगा, अगर आपको पता है कि फर्स्ट से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो सेकंड से भी आई अमाउंट ही होगा, थर्ड से भी अमाउंट ऑफ करंट सेम होगा, क्योंकि बिटवीन दीज टू पॉइंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रिमेन्स द सेम। और आपको एक बात और बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर मैं बात करूं, that amount of electric current flowing through each resistor is same as that of the total current flowing through the circuit. सर्किट से सपोज इस पर्टिकुलर डायग्राम में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो वही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रजिस्टर से। देन अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, द पोटेंशियल डिफरेंस across each register may not be the same, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम नहीं भी हो सकता है। यहां पे वोल्टेज सपोज अक्रॉस द फर्स्ट वन बी V1, सेकेंड वन बी V2 एंड द थर्ड वन बी V3। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जरूरी नहीं है कि सभी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे भी। सो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, V डिपेंड्स ऑन I एंड R। सो I तो सेम है, लेकिन R अगर सेम नहीं हुआ तो V का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऑफ द सोर्स ये डिवाइड हो जाता है across the resistors. So V is equals to what? V is equals to V1 plus V2 plus V3। ये तो 3 के लिए, अगर 4 रजिस्टर होगा तो 4 के लिए अप्लाई करना होगा, n नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए दिस कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ क्या समझा हम लोगों ने, रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोला जाता है, रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन द सेम पाथ ऑफ करंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या समझा हम लोग ने कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कि सीरीज कॉम्बिनेशन में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। लेकिन बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर में नॉट बी द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस में नॉट बी द सेम। तो आप अगर सभी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उन सबको अगर ऐड करोगे यू विल गेट द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। ओके, अब मेन पॉइंट है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में, रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिस्कशन मेनली करने वाले हो। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं मेनली न्यूमेरिकल्स, और यहाँ पे आपको एक चीज और जानना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय द फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको हम लोग n नंबर ऑफ रजिस्टर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहां हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, क्या डिस्कस किया, अंडर व्हाट कंडीशन रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेन जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यू शुड नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। और अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। Now we'll discuss about parallel combination। और सबसे पहले जान लो आप parallel combination कब बोला जाता है रजिस्टर्स को, under what condition they are said to be in parallel combination। So under what condition registers are said to be in parallel combination। तो यहाँ पे सिस्टम आपको समझना है, बेसिक क्लियर रखना है कि रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब बोला जाएगा, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहले सीरीज में क्या था, इन द सेम पाथ ऑफ करंट। पैरेलल में इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स along the different paths of current between the 2 points। इस बार आप देखो 3 रजिस्टर को कनेक्ट किया बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे अगर हम लोग सोर्स ऑफ करंट एक सेल को लगा दें और करंट फ्लो होने दें। सो डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशन यू नो दैट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, सेकेंड का रेजिस्टेंस R2, थर्ड का रेजिस्टेंस R3, एंड करंट यहाँ स्प्लिट हो जाएगा into 3 parts. Let the current in the first part be I1, second part be I2, and third part be I3. You can see here between A and B, resistors are connected along different paths of current. In this condition, resistors are said to be in parallel combination. Okay. So resistors को parallel combination में कब बोला जाता है? When they are connected between 2 points in the different paths of electric current. तो यहाँ पे एक पॉइंट A है और ये रजिस्टर यहाँ कनेक्ट किया है मैंने, दूसरा यहाँ कनेक्ट किया है और ये पॉइंट B. आप बोलोगे दिखने में ये दोनों रजिस्टर R1 एंड R2 आपको पैरेलल नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो ये दोनों रजिस्टर दे आर इन द डिफरेंट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको जानना है दैट विल हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. नाउ फर्स्ट वन, द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज across each register remains the same. The potential difference यानी voltage across each register remains the same. So यहाँ पे अगर सोर्स का वोल्टेज V है, across each register potential difference remains the same. यहाँ भी V होगा, इधर भी V होगा और इधर भी V होगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में सोर्स का वोल्टेज अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाता है अक्रॉस द रजिस्टर, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सोर्स का वोल्टेज जितना होगा अक्रॉस द रजिस्टर सेम वोल्टेज ही अप्लाई होगा. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ the source voltage, same as that of the source voltage. Okay, so potential difference across each resistor remains the same and same as that of the voltage of the source. और यहाँ पे हम लोगों को सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये पता है दैट अगर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I है, this I gets divided into 3 parts in this particular circuit. अगर 4 पार्ट्स होता तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता. And you should know that I is equals to I1 plus I2 plus I3, और अगर ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड है then n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. So these are the two important characteristics. क्या क्या समझा हम लोगों ने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में voltage across each register remains the same and it is same as that of the voltage applied by the source. And second, I is equals to I1 plus I2 plus I3. अगर अलग अलग रजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उनका मैग्नीट्यूड को आप अगर ऐड कर दो then you will get the amount of total current flowing through the circuit. Then about equivalent resistance, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/R इज इक्वल्स टू, या RP लिख लो पैरेलल को आप इंडिकेट करने के लिए. 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए we can apply, we can write up to 1/Rn. Okay, so equivalent resistance in parallel combination formula क्या है? 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 up to n number of registers. तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया characteristics of the parallel combination or characteristics of the circuit in parallel combination. Registers are connected in parallel combination. और अब थोड़ा और डिस्कशन हम लोग करते हैं that will definitely help you in solving numericals.
सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करता हूं आपको कि दो रजिस्टर सिर्फ मैंने कनेक्ट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में. इफ आई कनेक्ट टू रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक का रेजिस्टेंस R1, सेकंड का रेजिस्टेंस R2, तो हम लोग लिखेंगे 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो R विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2. दो रजिस्टर के लिए आपको अगर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए दैट टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 6 ohm and 3 ohm, they are connected in which combination? पैरेलल कॉम्बिनेशन. 6 ohm और 3 ohm को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है. R1 का वैल्यू 6 ohm, R2 का वैल्यू 3 ohm. इन दैट केस R इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें ये वाला, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2. सो R1 इंटू R2, R1 6 into 3 divided by 6 plus 3 ohm and it is 18/9 यानी 2 ohm is the answer. ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर टू रजिस्टर्स. फॉर हाउ मेनी रजिस्टर्स? टू रजिस्टर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में दे देता हूं आपको दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक बात जानना चाहिए दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज हायर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन. चीज को समझना आप. अगर मैं 3 रजिस्टर यहां लगाता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में, पहला का रेजिस्टेंस 2 ohm, सेकंड का रेजिस्टेंस 3 ohm और थर्ड का रेजिस्टेंस 4 ohm, तो ऐसे भी मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से आपको पता ही चल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. 2 3 5 प्लस 4 9 ohm. तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट? 9 ohm. तो आपको मैं अगर पूछूं कि R1, R2 और R3 में सबसे कम वैल्यू किसका है, तो आप बोलोगे R1 का. सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, तो आप बोलोगे R3 का. एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओके इज higher than the highest resistance in combination, मतलब R is greater than R3. लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन. जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करेगा तो इफ आई कनेक्ट 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही 3 रजिस्टर को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, इन दैट केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट वन R1 का वैल्यू 2 ohm, देन R2 का वैल्यू 3 ohm, R3 का वैल्यू 4 ohm. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन. लोअर देन द लोएस्ट, सबसे कम कौन सा? 2 ohm. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ जो आएगा R इज लोअर देन किसके? R1. R1 से भी छोटा होगा. तो मैं यहाँ पे आंसर गेस कर सकता हूं इसका आंसर क्या आने वाला है. 2, 3 और 4. द आंसर शुड बी लेस देन 2. आंसर शुड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन 2. और यहाँ पे 2, 3 और 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन 4. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको किसी किसी न्यूमेरिकल में चाहिएगा. क्या बताया मैंने? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन is higher than the highest resistance in combination, and equivalent resistance in parallel combination is lower than the lowest resistance in combination. अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी आपको. अगर मैं दो एक जैसा रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता हूं, इफ आई कनेक्ट 2 रजिस्टर्स ऑफ सेम वैल्यू, R1 का वैल्यू 4 ohm, R2 का वैल्यू 4 ohm, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, दो रजिस्टर है तो 1/2 ऑफ 4 ohm यानी 2 ohm.
आप कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे तो भी यही आएगा। आप अगर 3 एक जैसा रजिस्टर पैरेलल में लगाते हो, कुछ कुछ न्यूमेरिकल में सर्किट रिलेटेड आप डायरेक्ट मेंटल कैलकुलेशन भी कर पाओगे अगर आपका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो यहाँ R1 4 ओम, R2 is 4 ohm and R3 is also 4 ohm. In this case, equivalent resistance is 1/3 of 4 ohm. So that is 4 by 3 यानी 1.33 ohm. ठीक है। अगर आप 4 ऐसा रजिस्टर, if you connect 4 such registers in parallel combination, 1, 2, 3 and 4 registers in parallel combination, इस केस में आपको अगर पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको अगर यहाँ पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जस्ट लुक एट हियर। इसका फर्स्ट का वैल्यू R1 4 ओम, देन R2 4 ओम, देन R3 4 ओम, देन R4 4 ohm. In this case, equivalent resistance R is 1/4 of 4 ohm, and that is 1 ohm. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया है जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक जैसा रजिस्टर अगर कनेक्टेड हो, दे आर ऑफ द सेम वैल्यू, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कितना इजी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। So just note down properly. ये सब आपको help करेगा in solving numericals. Now we are going to discuss first question of this particular video, this particular series. Question number 1. 3 resistors of resistances 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected. Number 1 in series combination. Number 2 in parallel combination. And you are asked to calculate equivalent resistance in each case. So just look at the solution. यहाँ पे आपको given है 3 resistors के बारे में। फर्स्ट वन का रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R1 2 ohm, सेकेंड का रेजिस्टेंस R2 4 ohm and third one having resistance that this be R3 का वैल्यू 6 ohm। तो आपको यहाँ पे 2 केस में कैलकुलेशन करना, फर्स्ट वन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों को पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। 3 रजिस्टर के लिए R is equals to R1 plus R2 plus R3। सो R1 का वैल्यू क्या है 2 ohm, R2 का वैल्यू 4 ohm, R3 का वैल्यू 6 ohm। So it is what 12 ohm. Okay, now second case, you are asked to calculate equivalent resistance in parallel combination. So for parallel combination, अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करें तो we know the formula to calculate equivalent resistance. 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 for 3 resistors. So we can write here 1 by R is equals to 1 by 2 ohm plus 1 by 4 ohm plus 1 by 6 ohm. So यहाँ पे 1 by R is equals to, आप जब LCM निकालोगे आपको मिलेगा 12, we can write here 12 ohm and here it is 6 plus 3 plus 2. So 1 by R is equals to 11 by 12 ohm. Therefore R is equals to 12 by 11 ohm. आप जब कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, you will get 1.09 ohm. So in this way you can solve this particular numerical. लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन में आप सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना,
यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बिटवीन ए एंड बी ऐसे आप ड्रॉ कर देना 3 रजिस्टर्स को। कौन सा कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 4 ओम, R3 का वैल्यू 6 ओम, लाइक दिस। और सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी डायग्राम ड्रॉ कर देना, ये एडवाइसेबल है आप सबको, ऐसा करना चाहिए। सर्किट डायग्राम का न्यूमेरिकल्स में यू शुड ऑलवेज ड्रॉ सर्किट डायग्राम। चाहो तो आप यहाँ एक सेल लगा सकते हो सर्किट को कंप्लीट दिखाने के लिए। एंड हियर पॉजिटिव नेगेटिव करंट का डायरेक्शन भी दिखा सकते हो आप। एंड थोड़ा और अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। 3 registers connected in which combination? Parallel combination. Direction of current positive to negative. R1 का वैल्यू 2 ohm, R2 का वैल्यू 4 ohm and R3 का वैल्यू 6 ohm. So in this way you can solve this type of numericals. Just note it down properly. We are going to discuss what is the question. Look at the question. What is the highest and the lowest total resistance or equivalent resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. तो आपको पूछा गया है कि 4 रेजिस्टर्स आपको गिवन है, इनका वैल्यू है R1 4 ohm, R2 8 ohm, R3 12 ohm and R4 24 ohm। और आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से जो हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या ऑब्टेन किया जा सकता है। तो मैं अगर आपको पूछूं कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन में मिलेगा आपको, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, और लोएस्ट आपको मिलता है कौन सा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हायर देन द हाईएस्ट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोअर देन द लोएस्ट। सो यहां पे फर्स्ट केस हम लोग फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए वी हैव टू यूज विच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4। तो यहाँ पे R1 plus R2 plus R3 plus R4 4 ohm plus 8 ohm plus 12 ohm and 24 ohm। तो आप जब ऐड करोगे यहाँ 24 plus 12 हो गया 36, 36 plus 4 40, 40 and 8 48 ohm। ये है हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। एंड लोएस्ट पैरेलल में, लोअर देन द लोएस्ट। सो फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस, फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4. Okay, so it is 1/R1 plus is equals to 1/R equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4। यहाँ पे 1/R is equals to 1/4 ohm plus 1/8 ohm plus 1/12 ohm plus 1/24 ohm। So we got here 1/R equals to 1/, बहुत easy question है, easy to solve। The question is, if 3 resistances of 3 ohm are connected in parallel combination, what will be their equivalent resistance? तो number of resistances यहाँ दिया हुआ 3
ईच का वैल्यू 3 ओम, और उनको कनेक्ट किया गया है कौन सा कॉम्बिनेशन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो 3 registers, each of value 3 ohm, each of value 3 ohm are connected in parallel combination. They are connected in which combination? Parallel combination. R1 का वैल्यू 3 ohm, R2 का वैल्यू 3 ohm, R3 का वैल्यू 3 ohm. और आपको पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना. फॉर्मूला आपको पता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. So here it is, 1/R is equals to 1/R1, 1/3 ohm plus 1/3 ohm plus 1/3 ohm. So यहाँ पे LCM हम लोग को मिलेगा 3. So 1/R is 3 ohm and here it is 1 plus 1 plus 1. So 1/R is equals to 3/3 ohm. Therefore, R is equals to 3/3 ohm, that is 1 ohm. So the equivalent resistance is 1 ohm. So this was one of the easiest question out of the 3 or solution. I hope you have understood. Now we'll move to question number 4. Just look at question number 4. The question is, how should the two resistances of 2 ohm each be connected so as to produce equivalent resistance of 1 ohm? पूछा गया है 2 ohm का 2 रजिस्टर है आपके पास, उनको कैसे कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ohm आएगा. आपको तो पता ही है कि 2 रजिस्टर अगर सीरीज में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर सीरीज का बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2, दोनों का वैल्यू 2 ohm. सो 2 ohm प्लस 2 ohm विल बी 4 ohm. तो ये कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा. तो हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 फर्स्ट का वैल्यू 2 ohm ले रहे हैं, सेकेंड का वैल्यू भी 2 ohm ले रहे हैं. So parallel combination में equivalent resistance 1/R equals to 1/R1 plus 1/R2. तो यहाँ पे 1/R is equals to 1/2 ohm plus 1/2 ohm. So 1/R is equals to LCM 2 ohm, 1 plus 1. So 1/R equals to 2/2 ohm. It is 2/2 ohm. Therefore, R is equals to 2/2 ohm, that is 1 ohm. Okay. So आपको क्वेश्चन में पूछा गया, how should the two resistors of 2 ohm each be connected? कैसे कनेक्ट करना है वो आपको बताना होगा. So the two resistors should be connected in parallel combination. Okay, to get the equivalent resistance of 1 ohm. और मैंने आप लोगों को बोला कि सभी न्यूमेरिकल में आप अगर पॉसिबल है तो सर्किट डायग्राम जरूर ड्रॉ करना. यहाँ बहुत सिंपल सर्किट डायग्राम बनाना था आपको. दोनों रजिस्टर जिनका वैल्यू 2 ओम है उनको सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में आपको दिखाना था सर्किट में. R1 का वैल्यू 2 ओम और R2 का वैल्यू भी 2 ohm. So in this way you can solve this particular question. And now I am moving to question number 5. Just note it down. अब आप question number 5 देखो, you will be able to understand
तो क्वेश्चन अभी आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ 16 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करते हैं डायग्राम के साथ। बोला गया कि 4 रेजिस्टर्स ईच का वैल्यू कितना है, ईच का वैल्यू है 16 ओम। तो डायग्राम थोड़ा ठीक बनाने के लिए पहले मैंने 2 रजिस्टर ड्रॉ किया है, देन दिस इज द थर्ड वन and this one is the fourth one. Okay, so यहाँ पे each का वैल्यू 16 ओम है, 16 ओम each resistor. So 4 resistances of 16 ohm each are connected in parallel and 4 such combinations are connected in series. तो ऐसा 4 कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा दिया गया। तो मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ऐसा 4 कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा दिया गया। तो आप डायग्राम देखो, आप समझ जाओगे। पहला के साथ मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ लगाया है। ऐसा 4 सेट्स, they are connected in which combination? They are connected in series combination. 4 such sets are connected in which combination? Series combination. डायग्राम आप लोग थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करना। मैं जो पैड यूज कर रहा हूँ उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है। इट इज नॉट दैट इजी टू ड्रॉ द डायग्राम्स। आप इसको थोड़ा और अच्छा से ड्रॉ करने का कोशिश करना। So 4 such sets are connected in series like this. ऐसा 4 सेट सीरीज में लगा दिया गया। ओके, What is the equivalent resistance? मतलब आपको between A and B equivalent resistance find out करना है, between A and B। तो मैं पहला सेट का equivalent resistance निकाल लेता हूं और उसको एक सेट का अगर पता चल जाएगा तो बाकी सब सेट का भी पता चल जाएगा। एंड देन A से B तक हम लोग उसको एज ए सीरीज कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं शेयर। फर्स्ट को अगर हम R1, R2, इसको R3 और इसको R4 लेता हूं। सो फॉर फर्स्ट सेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमको फाइंड आउट करना है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सो 1/R इज इक्वल्स टू, मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो आप जब कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा R का वैल्यू 4 ओम। ठीक है, तो पहला सेट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ रहा है। तो अगर पहला सेट का 4 ओम आ रहा है तो बिटवीन A एंड B पहला सेट 4 ओम, सेकेंड सेट 4 ओम, थर्ड सेट 4 ओम एंड फोर्थ सेट इज ऑल्सो व्हाट 4 ओम। तो यहाँ पे 4 ओम 4 ओम 4 ओम एंड 4 ओम। ओके, नाउ अगर आपको चीज समझ में आ गया तो आपको पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको डायग्राम इसे ड्रॉ करना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 4 such sets in series combination। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा 4 सेट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स हम लोग को लिखना है। 4 टाइम्स मतलब जो इक्विवेलेंट पहला सेट का आ रहा 4 ओम, 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम। सो इट विल बी R is equals to 16 ohm. Okay, R is equals to 16 ohm. I hope you have understood this one. बहुत interesting question है। Okay, just note it down properly. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Now just look at the question. पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं हम लोग।
यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंसेस, या हम लोग बोल सकते हैं 3 रजिस्टर्स ऑफ 1, 2 एंड 3 ओम। तो इनका वैल्यूज गिवन है रेजिस्टेंस का 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। शो बाय डायग्राम हाउ विद द हेल्प ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस यू कैन गेट, मतलब आपको डायग्राम से शो करना है, कैलकुलेशन भी करना होगा कि आप कैसे इन 3 रजिस्टर से 6 ओम, 6/11 ओम और 1.5 ओम ऑब्टेन कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को हम लोगों को 3 पार्ट में सॉल्व करना होगा। गिवन रेजिस्टेंसेस का वैल्यू है और रजिस्टर्स का रेजिस्टेंसेस है। फर्स्ट वन R1 1 ohm, second one R2 2 ohm and third one R3 3 ohm। तो पहला केस इसमें पूछा गया है, फर्स्ट केस में 6 ओम कैसे लाओगे आप, हाउ विल यू गेट 6 ओम, और 6 ओम कैसे पॉसिबल है, सीरीज में तीनों को ऐड करना है हम लोग को। तो 6 ओम पॉसिबल है इफ द 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग डायग्राम से ये शो कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो यहाँ पे R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm. So the equivalent resistance in this case R1 plus R2 plus R3, that is R1 is 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm and the equivalent resistance is 6 ohm. So यहाँ पे पूछा गया how will you obtain or how will you get 6 ohm? So by connecting all the 3 resistors in which combination? Series combination। ये statement आप लिख सकते हो इसके साथ। How will you get it? By connecting the 3 given resistors in series combination। Now second one, आपको 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm से 6/11 ohm चाहिए। 6/11 is less than 1। तो ऐसा कब पॉसिबल है? लोअर देन द लोएस्ट हम लोग को गेस करना होगा। लोअर देन द लोएस्ट हम लोग को आइडिया है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है, और हम लोग को एक बार ये कैलकुलेशन करके देखना होगा कि ये 6/11 ओम आएगा कि नहीं। सो 3 रजिस्टर्स आई एम कनेक्टिंग इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल। कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग को ऑलरेडी पता है कि लोअर देन द लोएस्ट आना चाहिए। सो R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm and R3 is 3 ohm। तो इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो यहाँ पे 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1, so it is 1/1 ohm plus here 1/2 ohm, then 1/3 ohm। ओके, और यहाँ पे LCM अगर आप फाइंड आउट करोगे you will get what? 6 ohm। So here it is 6 plus 3 plus 2, so it is 1/R is equals to 11/6 ओम यहाँ डिनोमिनेटर में है। Therefore R is equals to 6/11 ओम। तो अब आपको पता चल गया कि 6/11 पॉसिबल कौन सा कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप लास्ट में लिख सकते हो वी कैन गेट 6/11 ओम बाय कनेक्टिंग द 3 गिवन रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ना अब बात करते हैं हम लोग थर्ड केस की। 1.5 चाहिए, तो सीरीज में लगाने से आता है 6, पैरेलल में कनेक्ट करने से आता है 6/11 और रिक्वायर्ड है 1.5। और एक कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो एक जैसा रजिस्टर अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट हाफ ऑफ ईच, शायद आपको याद अगर होगा, इक्विवेलेंट हाफ ऑफ ईच। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि मुझे पता है कि
3 ओम 3 ओम अगर पैरेलल लग जाए तो इक्विवेलेंट 1.5 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 3 ओम गिवन नहीं है, लेकिन 1 और 2 मिलके तो 3 हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 1 ओम और 2 ओम को सीरीज में लगा दूंगा और वो जो कॉम्बिनेशन है उसको 3 ओम के साथ पैरेलल लगा दूंगा। सो दिस इज व्हाट, 1 ओम 2 ओम और यहाँ 3 ओम। तो इसको हम लोग लेते हैं R1, ये R2 और ये R3, और हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले अपर पार्ट का सीरीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। RS इज R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने के बाद 1 ओम प्लस 2 ओम, ये आ रहा आपका 3 ओम। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ का इक्विवेलेंट आ रहा है 3 ओम। ये 3 और R3 के साथ पैरेलल अगर कर दें, पैरेलल हो गया ऑलरेडी ये, सो 1/R इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3। आप जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट, मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ, अब जब कैलकुलेशन करोगे आपको क्या मिलने वाला है, 3 ओम और 3 ओम हो गया। So therefore you will get R is equals to 1.5 ohm. तो आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट लास्ट में लिखना चाहिए that यहाँ पे पूछा गया how can you get 1.5 ohm. So we can get 1.5 ohm by connecting 1 ohm and 2 ohm in series, and that series combination in parallel combination to the 3 ohm resistor as shown in the diagram. मतलब 1 और 2 को जब आप सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट 3 आ गया। वो 3 और R3 वाला 3 ओम को जब हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1.5। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल में आपको अपना दिमाग का क्रिएटिविटी यूज करना होगा, कब आपको कौन सा डायग्राम से कौन सा न्यूमेरिकल कौन सा पार्ट सॉल्व होगा, ये डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा। लेकिन मैं ऐसा बहुत एग्जाम्पल आने वाला सीरीज में और डिस्कस करने वाला हूं। सो यू कैन, यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन आई थिंक। और अब हम लोग मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज कन्वर्टेड इनटू और इन अ सर्कल। एक वायर को, जो स्ट्रेट वायर था उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट the resistance across the diameter of the circular wire. Okay, diameter of the circular wire. तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना है और सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सो देयर इज अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 5 ओम। And this straight wire is now converted into a circle. स्ट्रेट वायर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है एक सर्कल में, और ये मान लेते हैं A and B are the 2 points across the diameter. तो इस वायर को जब हम लोग सर्कल में कन्वर्ट करेंगे, half of the wire will be the upper part of the circle and half of the wire will be the lower part of the circle. हम लोग जानते हैं कि resistance is directly proportional to the length of the wire. Factors affecting resistance, one factor is the length. तो upper half का resistance, half of the wire upper part में है, तो ये 5/2 that is 2.5 ohm होगा, and lower part का resistance भी कितना होगा, 2.5 ohm. और आपको पूछा गया what is the equivalent resistance or resistance across the diameter of the circular wire. तो अब यहाँ across the diameter अगर आप बात करते हो तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों आप ठीक से देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया R1 एंड R2। सो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो 1/R इज इक्वल्स टू
1 by R1 plus 1 by R2. So here it is, 1 by R is equals to 1 by R1, that is 1 by 2.5 ohm plus 1 by 2.5 ohm. ओके, आप डेसिमल यहाँ ठीक से मार्क कर लो, 1 by 2.5 ohm. So 1 by R is equals to 2 by 2.5 ohm. आप इसको सिंप्लीफाई करने से therefore R का वैल्यू क्या होगा, 2.5 ohm by 2, that is 1.25 ohm. So if I ask you what is the resistance across the diameter of this circular wire, answer will be 1.25 ohm. And this is one of the most important question. आज का क्लास का डिस्कशन का one of the most important, and we are going to discuss next question, question number 8. Just look at this question, another important pattern. Question number 8. A resistor of 8 ohm is connected in parallel with another of resistance X. Given nahi hai. The resultant resistance यानी equivalent resistance of the combination is 4.8. What is the value of the resistor X? क्वेश्चन पहले ठीक से समझने का कोशिश करना आप, कि आपको बोला गया दो रेजिस्टर हैं जिसमें से एक का वैल्यू आपको पता है और एक का वैल्यू आपको पता नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, R1 का वैल्यू आपको बता दिया गया 8, R2 का वैल्यू आपको पता नहीं, लेट इट बी X, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 4.8 ohm. So अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये जान गए कि यहाँ बात हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का. सो वी कैन राइट, वी नो 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. ये हम लोग लिख सकते हैं. So 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2. यहाँ पे 1 by R यानी 1 by 4.8 ohm is equals to 1 by R1 यानी 1 by 8 ohm plus 1 by R2 यानी we can write 1 by X. Okay, so इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 by X is equals to 1 by 4.8 ohm minus 1 by 8 ohm. Okay, अब यहाँ पे 1 by X equals to 10 by 48 हम लोग लिख सकते हैं, और इधर माइनस 1 by 8 ohm. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी कैन डू, हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा. तो 1 by X इन दोनों का एलसीएम आएगा 48. ये आपको खुद करके देखना है, 48. एंड देन हियर यू विल गेट 10 minus, and here 8 6 are 48, so 10 minus 6. So 1 by X equals to 4 by 48 ohm. इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं. Therefore X is equals to 48 by 4 ohm, and that is 12 ohm. Okay, so हम लोग को यहाँ पता चल गया about the value of X, और इस तरह हम लोग जो गिवन पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. मेरा सजेशन आप लोगों को कि जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए रिलेटेड टू द क्वेश्चन, और जहां तक हो सके यू शुड ड्रॉ द डायग्राम यूजिंग पेंसिल. पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए.
Now we'll discuss question number 9. Here it is given two resistors when connected in series. The equivalent resistance is 9 ohm. But when connected in parallel combination, the equivalent resistance is 2 ohm. Calculate the resistance of each resistor. So if you look at the solution, according to question, हम क्या लिख सकते हैं? Question में given है two resistors when connected in series. The equivalent resistance is 9 ohm. तो हम लोग ये मान लेते हैं let the resistance of the two resistors be. The resistance of the two resistors be R1 and R2 respectively. R1 and R2 respectively. And according to question, we can write first part में दिया हुआ series combination. We can write R1 plus R2 equals to 9 ohm. So R1 is equals to 9 minus R2. This can be considered as equation 1. Again, from the same question, parallel combination के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 by R1 plus 1 by R2 equals to 1 by 2 ohm. This is second equation. Okay. Then by putting the value of R1 from equation 1 into equation 2. By putting the value of R1 from equation 1 into equation 2, तो हम लोग का equation change कैसे हो जाएगा? Second equation 1 by R1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 9 minus R2 plus 1 by R2 equals to 1 by 2. Okay, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ फॉर कैलकुलेशन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रखने के लिए. So 1 by 9 minus R2 plus 1 by R2 equals to 1 by 2. Now दोनों का एलसीएम लेने से होगा 9 minus R2 into R2 और इधर आ जाएगा R2 plus 9 minus R2. This is equals to 1 by 2. और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. This will be 9R2 minus R2 square. और यहाँ R2 plus 9 minus R2. R2 get cancelled, so it is 1 by 2. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं, विल गेट व्हाट 18 equals to 9R2 minus R2 square. For the simplification, we'll get R2 square minus 9R2 plus 18 equals to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब हम लोग अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, so we can write here R2 square minus 6R2 minus 3R2 plus 18 equals to 0. Further, we can write R2 square, sorry, R2 कॉमन ले लेते हैं. R2 minus 6 ब्रैकेट में, इधर minus 3 कॉमन लेने से R2 minus 6 equals to 0. So we can write what, अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, we can write R2 minus 6 R2 minus 3 equals to 0. So R2
minus 6 equals to 0 or R2 minus 3 equals to 0. So we can write R2 equals to 6 ohm और R2 equals to 3 ohm. तो हम लोगों को R2 का वैल्यू पता चल गया. R2 या तो 6 ओम होगा या फिर 3 ओम होगा. Again from equation 1 से हम लोग R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं. So R1 will be what? अगर equation 1 देखें हम लोग, R1 is 9 minus R2. So it will be 9 ohm minus 6 ohm equals to 3 ohm, or R1 is equals to 9 minus R2. तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड केस में ले सकते हैं. It is 9 ohm minus 3 ohm, that is equals to 6 ohm. तो यहाँ क्या देखा हम लोगों ने, R1 3 ओम भी हो सकता है और R1 6 ओम भी हो सकता है. तो अगर दोनों रजिस्टर का बात करें तो दोनों में से एक को 6 ओम होना है, तो उसी कंडीशन में दूसरा वाला 3 ओम होगा. सो वी कैन राइट व्हाट the resistances of the two resistors be be 6 ohm and 3 ohm. तो ये फाइनल सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपको पूछा गया दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है गिवन कंडीशन से. तो एक अगर 6 ओम होगा तो दूसरा 3 ओम होगा. सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो 9 ओम आएगा और पैरेलल में आप चेक करोगे तो ये 2 ओम आएगा. सो यू कैन नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. Now we are going to discuss last question of this series, question number 10, and this one, just look at the question. Question में क्या given है? A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel combination. If the equivalent resistance in parallel combination is R dash, calculate the ratio of R is to R dash. Question में given है एक वायर, ये एक वायर मान लेता हूं मैं, और इसका रेजिस्टेंस गिवन है R. This wire is cut into 5 equal parts, 3, 4 and 5, और इनको लगा दिया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सो दिस वायर, ये वायर है, मैं इसको 5 अलग अलग पार्ट में दिखा देता हूँ. रजिस्टर्स इसमें है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. It is divided into 5 equal parts. तो इसको जब 5 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी R by 5. ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग? Because we know that resistance is directly proportional to the length of the wire. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, since resistance is directly proportional to the length of the wire, resistance of each part will be what? R by 5. Each part का रेजिस्टेंस होगा R by 5. अब आपको बोला गया कि इनको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R डैश. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये लिख सकते हैं 1 by R डैश इज इक्वल्स टू 1 by पहला वाला का R by 5 प्लस 1 by R by 5 प्लस 1 by R by 5 थर्ड वन प्लस 1 by R by 5 प्लस 1 by R by 5. तो ये R डैश हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. 1 by R डैश is equals to, we can write 5 by R plus 5 by R
प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, सो विल गेट व्हाट 1/r डैश इज इक्वल्स टू 25/r। और क्वेश्चन अगर ठीक से देखो तो आपको फाइंड आउट क्या करने बोलेगा, दैट इज r/r डैश। तो इसी से हम लोग को ये मिल जाएगा r/r डैश, r डैश इज इक्वल्स टू 25/1 is equals to 25/1. So the ratio is 25:1. So इस तरह इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका इन टेक्स्ट में दिया हुआ क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट में। सो दिस इज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन डिस्कस किया है, और नेक्स्ट सीरीज में इससे थोड़ा अपग्रेडेड क्वेश्चंस विद सर्किट डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो इन न्यूमेरिकल को अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, देन इन द नेक्स्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम इजीली। थैंक यू।